Hello and welcome back all of you. The discussion of the official BTSC dental एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 11 तक डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन 11 तक देख लिया था। शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन 12 से। विच स्कूल ओरल हेल्थ प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड टू सपोर्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज विथ देयर डेंटल केयर नीड्स। PhD का क्वेश्चन है, आंसर गिवन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। Which of the following statement is true regarding the materials and techniques used in interim therapeutic restoration and atraumatic restorative treatment? Again PhD का क्वेश्चन है ये, आंसर आपके सामने है। Which of the following statement best describes the principle behind the paralleling technique in intraoral periapical radiograph? रेडियोलॉजी का क्वेश्चन है OMR से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच जोन ऑफ द डेवलपिंग सेकेंडरी कार्टिलेज ऑफ द कॉन्डाइल इज टाइप 1 कोलेजन एक्सप्रेस्ड? एनाटॉमी का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन ओरल मैनिफेस्टेशन सीन इन पेशेंट्स विद एडिसन्स डिजीज? आंसर दिया हुआ है। Thermal expansion of type 1 investment material should be in the range of? Dental material से ये क्वेश्चन है आपका। Which of the following is the primary objective of splinting mobile teeth in PDL therapy? Periodontics, periodontal surgery का क्वेश्चन है ये। Which of the following is a disadvantage of using a cantilever bridge for a posterior missing tooth? Prostho का क्वेश्चन है। Which lesion typically exhibits a sunburst radiographic pattern? Oral medicine का क्वेश्चन है, फाइनल ईयर। Which is the anatomic unit of the craniofacial complex that is composed of all the elements derived from the first branchial arch? फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया एनाटमी एज वेल एज डेंटल एनाटमी, दोनों में आपको मिलेगी ये चीज़। Which of the following best explains why a PDL abscess may occur following subgingival instrumentation in patients with untreated deep periodontal pocket? ECC lesion typically begins at early childhood caries कब से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? Which vital pulp therapy material has a superior ability to resist future penetration of bacteria, produces dentinal bridging with superior structural integrity and is highly biocompatible with pulpal tissues? ठीक है। Question 25. Which of the following statement is true regarding administration of pre-hospital aspirin to a patient with a suspected stroke? Medical emergencies का क्वेश्चन है ये। Which microorganism is commonly associated with PDL abscess formation? P. gingivalis. What is the best method for evaluating the success of school oral health program? PhD का क्वेश्चन है ये। What is a key advantage of using direct splinting techniques in periodontal therapy? Periodontology. Which of the following cytokines is predominantly involved in the pathogenesis of oral lichen planus? तो क्वेश्चन पेपर रिवाइज करने का हमारा मेन मोटो यही है कि हमें देखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप नोट करोगे तो डेंटल केरीज, ओरल लाइकन प्लानस, एस्पिरिन, इन सबको हमें क्लास में भी बताया जाता है कि ज़्यादा अच्छे से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज यहाँ हमें विजिबली दिख भी रहा है कि ओरल लाइकन प्लानस, ECC, डेंटल केरीज, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Which of the following is a diagnostic feature of aggressive periodontitis? Which of the following genetic conditions is the most linked with rampant caries? सी हम लोग बस क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने अपने पुराने वीडियोस में यूट्यूब पे सारा सिलेबस फुल्ली कवर कराया था एग्ज़ाम से पहले, और इन सब का आंसर आपको मेरे लेक्चर में बिल्कुल विथ क्लियर डेफिनेशंस, विथ क्लियर डिटेल के साथ मेरे लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको रिवाइज करना हो या कुछ भी करना हो तो आप
यूट्यूब पे जाकर वहाँ लेक्चर सुन सकते हैं। हर टॉपिक को बहुत इलेबोरेट करके और बहुत डीप में पढ़ाया गया है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब आप पढ़ोगे उन लेक्चर्स को, टॉपिक को, तो आप नोटिस करोगे कि इन सारे चीज़ों के आंसर हमने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से वहाँ समझा था। सारे टॉपिक्स को बहुत क्लियर किया गया था वहाँ, और क्वेश्चंस भी बहुत सारे उन्हीं टॉपिक्स से, उन्हीं डिटेल्ड लेक्चर्स से आए हैं। तो इजी हो गया होगा एग्ज़ाम, जिन्होंने लेक्चर अच्छे से सुनकर प्रिपेयर कर एग्ज़ाम दिया होगा उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच साइटोकाइन इज मोस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एल्विलर बोन रिजॉर्प्शन इन पेरियोडोंटाइटिस? Which of the following is the most appropriate liner to use under a deep class 1 composite restoration when the remaining dentin thickness is less than 0.5 mm? Next question देखिए तो, which of the following is an example of primary prevention in dentistry? Next question, which staining method is the most commonly used to detect epithelial dysplasia in oral premalignant lesion? ओरल मेडिसिन से क्वेश्चन है ये। The finding of rapid loss of gingival attachment and tooth supporting bone in the otherwise healthy subject presenting with a familial aggregation in is suggestive of a diagnosis of पेरियोडोंटोलॉजी का क्वेश्चन है। Identify the correct statement pertaining to Ackermann profit classification of dental malocclusion, ortho. What is the first step in managing syncope during oral surgery? First step in managing syncope during oral surgery. syncope एक हमेशा से important topic रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। What is a Pyer abutment? प्रोस्थो का क्वेश्चन है ये। Which of the following is a common oral issue in children with epilepsy? Next is why is the addition of chemical modifiers beneficial in silica containing dental investment? Dental material का क्वेश्चन है ये आपका। Next question, a periapical abscess appears on an X-ray as a। इस क्वेश्चन को जब हम लोगों ने डिस्कस किया था इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को, तो एंटी कन्वर्जेंस से जिंजाइवल इनलार्जमेंट, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। एंड सेम क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ है आपके। ऐसे ही सारे टॉपिक्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्ज़ाम में वो डिटेल्ड में है और उनसे क्वेश्चन भी आए हैं। तो आप लोग वापस प्रिपरेशन अगर किसी चीज़ की कर रहे हो या फर्स्ट अपेयरिंग हो तो आप लेक्चर्स को सुन सकते हो। बहुत अच्छे और बहुत डिटेल में समझाए गए लेक्चर्स हैं और आपके एग्ज़ाम्स के लिए इजी हो जाएगा टॉपिक्स को समझना उनसे। Why is the addition of a chemical modifiers beneficial in silica containing dental investment? Next question, periapical abscess appears on an X-ray as a। ये भी आपको पेरियो के लेक्चर में यूट्यूब पे मिल जाएगा, इसके भी डिटेल्ड में हमने लेक्चर्स लिया है, इसका भी डिटेल में। नेक्स्ट इज द वेनिल मैंडेलिक एसिड टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट ट्यूमर ऑफ। जब हमने नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव पेरियोडोंटाइटिस का लेक्चर लिया था तो क्लैरिफाई किया था इन चीज़ों को, वहीं से आंसर आपको मिल जाता। ये रहा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्लिनिकल साइन इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ अ फ्रैक्चर ऑफ जाइगोमैटिक कॉम्प्लेक्स। इसका आंसर हम लोगों ने देखा था जब हम लोगों ने जाइगोमैटिक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर पढ़ा था उसमें, एज वेल एज अभी पीछे हम लोग सिंकोप डिस्कस कर रहे थे और उसमें पूछा गया था सिंकोप में पोजीशन पेशेंट की क्या रखते हैं। हम लोगों ने क्लियरली पढ़ा था उस टाइम। ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन रखते हैं, हेड एंड चेस्ट स्लाइटली बिलो अ लाइन पैरेलल टू द फ्लोर एंड फीट स्लाइटली एलिवेटेड। ये सिंकोप में पोजीशन करते हैं हम पेशेंट को, और हमने लेक्चर में भी क्लियर किया था, हम लोगों ने साथ पढ़ा था ये। तो ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत डीप में पढ़ाए गए थे और एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल्स थे, तो आप रिवाइज करना अपने एग्ज़ाम के टाइम में।
Which material exhibits the highest compressive strength when used for DPC? डायरेक्ट पल्प कैपिंग DPC के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छे से MTA को डिफाइन किया था, MTA के बारे में पढ़ा था, और सेम क्वेश्चन है वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, when repairing a fractured metal framework of partial denture, which technique ensures the strongest bond between the new and existing metal components? Which of the following is not a disadvantage of ceramic materials for dental restorations? 50 क्वेश्चंस के बाद हम लोग स्टॉप करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन 49 इज व्हाट इज द रोल ऑफ GIC इन द सैंडविच टेक्निक? इसका आंसर क्या है? इट प्रोवाइड्स एंटी कैरियोजेनिक इफेक्ट बाय रिलीजिंग फ्लोराइड एंड बॉन्ड्स वेल टू द डेंटिन। जब हम लोगों ने पढ़ा था सैंडविच टेक्निक तो GIC के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। एंटी कैरियोजेनिक होगा, फ्लोराइड रिलीज करता है, केमिकल एडेशन होता है इसका, और एक डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट है। तो सेम आंसर आपके पास है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज microscopic eosinophilic bodies in the walls of inflammatory cysts with periapical condensed collagen and surrounded by lymphocytes and multinucleated giant cells are termed as। आंसर यहाँ दिया हुआ है आपका। इसके साथ हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। बाकी के 50 क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, पार्ट 3 में देखते हैं। थैंक यू।